Hello dear students, I am Prakash Vadhwana from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. So today we are going to study activity 9, and in this activity we are going to study one poem written by Nicole Richie. The name of the poem is Friendship. I hope you have watched the two parts of this chapter. I have already made two parts of this chapter. So still if you haven't watched the previous part of this chapter, then please watch it. Otherwise you will not understand this chapter. Okay. One more thing today we will discuss in this video, in this part, and this is the last part of this chapter, and that thing is homophone and homonym. Okay, so let's start. In this poem, a young girl has expressed her feelings for a friend in a direct and touching way. So one young girl was there. What was she did? So she has expressed her feelings for a friend in a direct and touching way. So whatever the feelings she has to her friends, means she was having so many friends, so for them she has expressed feelings in a direct way and touching way. Okay, and this poem is about importance and responsibility of being a friend. So whatever the responsibilities for being a friend and whatever the importance of friend in your life, that thing we will learn, that thing we will discuss in this poem. I hope you also are having so many friends. So for your friends, whatever the duties, whatever the responsibilities you have, that thing we are going to learn, we are going to discuss. And what is the importance of friend in your life? What is the role of a friend in your life? These all the things we are going to discuss in this video. Okay, so let's start. When you are sad, I will dry up your fears. Okay, now sad means what? Sad means दुखी होना, उदास होना. So यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि अगर आपका फ्रेंड उदास है, so what you have to do? You will have to dry up his or her tears. उसके आंसू आपको पोंछने हैं, उसके पास बैठना है, उसको कंसोलेशन देना है और उसको पूछना है, Why are you sad? क्यों उदास है? मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर. ऐसा कह के उसके टीयर्स को ड्राई अप करना है. ड्राई अप मीन्स व्हाट? टू वाइप आउट, पोंछना है. बट when your friends are sad, at that time what is your duty, students? You have to wipe out, you have to dry up his or her tears, and you have to give them consolation. Okay, next two lines. When you are scared, I will ease your fears.
One more thing is there. Suppose if your friends are scared. Now scared means what students? Frightened. अगर आपका फ्रेंड किसी बात से डरा हुआ है, so at that time what is your responsibility towards your friends? You will have to ease his or her fears. Ease means remove, दूर करो या फिर make less, उसको कम करो. किसको? फियर्स को. फियर्स मतलब डर को. अगर आपका फ्रेंड डरा हुआ है किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी बात को लेके, किसी ने उसको धमकाया है, किसी ने उसको डराया है, सो एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू ईज हिज और हर फियर्स. रिमूव करने हैं उसको, उसके डर को, एंड आपको उसको हिम्मत देने हैं, एनकरेज करना है. ओके, नेक्स्ट स्टैंजा. When you are worried, I will give you hope. Now worried means tension में. So suppose if your friends are worried, at that time what you have to give? Hope. Hope means आशा. ओके, सपोज आपके फ्रेंड्स फेल हो गए हैं, किसी भी चीज़ से वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, डिस्करेज हो गए हैं, तो आपको उस टाइम पे उसको हिम्मत देना, हिम्मत बढ़ानी है, उसको नई होप देनी है कि डोंट वरी माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम यू हैव टू डू इट बेटर. अच्छे से अच्छा देना नेक्स्ट टाइम. ओके, अभी चिंता मत कर. तो सपोज आपका कोई फ्रेंड्स है, एग्ज़ाम में फेल हो गया, तो आपको क्या करना है? उस टाइम पे उसको होप देना है कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़्यादा मेहनत करना तो अच्छे मार्क्स आएंगे. क्योंकि फेल हुआ है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसका ज़िम्मेदार कौन? वो खुद, क्योंकि उसने मेहनत ही नहीं की है. और फिर बाद में टेंशन लेके बैठने से क्या फ़ायदा बेटा. बट जो हुआ वो आपको वो सब भूल के उसको हिम्मत देनी है, होप देना है कि कोई बात नहीं, इस बार जो हुआ वो हुआ, अब अच्छे से अच्छा देना. नेक्स्ट 2 लाइन में है, इफ़ यू वांट टू गिव अप आई विल हेल्प यू कोप. नाउ गिव अप मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? गिव अप मीन्स टू स्टॉप ट्राइंग, टू एक्सेप्ट फेलियर. लेट्स discuss one example. Suppose आप लोग साइकिल सीख रहे हो, साइकिल चलाना आपको नहीं आता है, आप सीख रहे हो, बहुत सारी बार आप गिर गए, इंजर्ड हो गए, पैर टूट गए, हाथ टूट गया, आप क्या करोगे? छोड़ दोगे, नहीं सीखना, चलो चलेगा. क्या किया आपने? ट्राइंग करना स्टॉप कर दिया. इसका मतलब आपने फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया. दूसरा एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चों को स्टेज फियर होता है. प्रेयर के टाइम पे वो लोग आगे नहीं आते स्टेज पे बोलने के लिए, मना ही कर देते हैं, ट्राई ही नहीं करते हैं. तो इसका मतलब क्या है? आप लोगों ने क्या किया? ट्राई करने का बंद कर दिया. और इसका मतलब क्या होता है कि आप किसको एक्सेप्ट कर रहे हो? फेलियर को एक्सेप्ट कर रहे हो, फेलियर को. दूसरा का एग्जाम्पल मैं देता हूँ ताकि आपको भी पता चले कि नहीं सर आपकी बात राइट है. सपोज मोबाइल की बात करें तो अभी मोबाइल में बहुत सारी गेम्स आती है ना, और आप सब खेलते भी हो. तो मोबाइल की गेम्स में अगर वर्ल्ड पार नहीं होता है, कोई भी गेम आप खेलते हो, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड कोई भी पार नहीं होता है तो आप क्या करते हो? बंद कर देते हो गेम खेलना? नहीं, स्टॉप कर देते हो, नहीं खेलना, ये तो वर्ल्ड पार ही नहीं हो रहा, बहुत हार्ड है. बंद नहीं कर देते हो, आप ट्राई करते हो. क्यों? क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है. बट वहाँ पे आपको कुछ मिलने नहीं वाला है, आपको ट्रॉफी प्राइज़ वगैरह नहीं मिलने वाली है. तो आप ट्राई पे ट्राई कर रहे हो. जहाँ करना है वहाँ पे आप बंद कर देते हो, चलो नहीं करना है, छोड़ो, ये तो मुझे नहीं आएगा. तो मोबाइल में ऐसा करो ना. मोबाइल में क्यों ऐसा नहीं करते हो आप लोग गेम के टाइम पे? तो ये 2 चीज़ है.
आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो चीज़ अगर आपको नहीं आती है फिर भी आप उसमें ट्राई करते हो, बट जो चीज़ आपको सीखनी है जिसकी वजह से आप आपकी लाइफ में आगे आओगे, सपोज इंग्लिश स्पीकिंग है, इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो उसके लिए ट्राई करते हो? नहीं करते हो। स्टेज फियर है, स्टेज पे आने का ट्राई किया? नहीं, वहाँ पे आप लोग ट्राई नहीं करते हो। लेकिन गेम खेलने के टाइम पे वर्ल्ड पार नहीं होता है। फ्री फाइटर हो या कोई भी गेम हो, आप हार जाते हो तो वापस खेलते हो, दोबारा हार गए तीसरी बार हार गए चौथी बार, बट बंद नहीं करते हो खेलना जब तक वो वर्ल्ड पार नहीं होता है। तो ऐसा स्टडी में करो, जिसमें आप वीक हो उसमें ट्राई करो, जब तक सक्सेस ना हो तब तक। क्यों उसमें ऐसा नहीं करते हो? फेलर है ना, ऐसा ही आपको एक बार क्या करना है बेटा, सिर्फ ट्राई करना है। सीढ़ी जो होती है ना, सीढ़ी, उसका फर्स्ट स्टेप आपको सिर्फ चढ़ना ही है। एक स्टेप चढ़ लिया ना तो खुद ब खुद दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर आप ऊपर ही जाओगे, ऊपर ही जाओगे। बट आप फर्स्ट स्टेप ही ट्राई नहीं करते हो चढ़ने का, तो भी कहाँ से आएगा? देखो सन है ना, सन, सूरज, उसको भी उगने के लिए टाइम लगता है। धीरे 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 वो ऊपर आता है, सडनली ऊपर नहीं आ जाता है। वो एक ही सेकंड में ऊपर आ जाता है? नहीं, वो भी धीरे 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 राइज होता है। तो हमारी लाइफ में भी हम धीरे धीरे ऊपर आएंगे। जितने भी ग्रेट लोग हैं, महान लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी, सडनली पीएम बन गए वो? नहीं, उन्होंने भी बहुत सारे ट्राई किए हैं, बहुत सारी बार फेल हुए हैं, बट गिव अप नहीं किया उन्होंने। ओके स्टूडेंट्स, वैसा तो बहुत कुछ है समझाने के लिए, बट एक लिमिट आ जाती है। ओके सो कभी भी लाइफ में गिव अप मत करना। ये टॉपिक बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने इतना कुछ एक्सप्लेन किया है आप लोगों को कि आप भी आपके लाइफ में कभी भी गिव अप मत करना। और आपका फ्रेंड्स भी अगर गिव अप कर देता है तो आप उसके पास जाओगे और उसको क्या दोगे? कोप दोगे। कोप मतलब टू डील विथ, उसके साथ डील करना सिखाओगे उसको। फेलियर होगा, आप गिव अप कब करोगे? उस चीज़ में आप फेल होते जाओगे ना, जो चीज़ आप कर रहे हो उसमें अगर आप फेल होते जाओगे ना, तो वो उस चीज़ को आप क्या कर दोगे? गिव अप मतलब छोड़ दोगे। तो अगर आपका फ्रेंड भी ऐसा करता है तो आपको उसको क्या देनी है? कोप। उसको डील कैसे करना है वो चीज़ को, उसमें आगे कैसे बढ़ना है, अचीवमेंट कैसे हासिल करनी है, वो चीज़ आप आपके फ्रेंड्स को सिखाओगे। और आपको भी गिव अप नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर बच्चे फेल होते हैं ना 10th और 12th में, तो बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। क्यों करना पड़े? गलती किसकी है? आपकी ही है। आपने मेहनत नहीं की इसलिए फेल हो गए। पूरा साल होता है मेहनत करो और रिजल्ट फेल आया तब सुसाइड क्यों करना पड़े? मेहनत करनी चाहिए ना पूरा साल आप लोग घूमते हो, लेजी बन के पड़े रहते हो। पेरेंट्स चिल्लाते हैं, टीचर्स चिल्लाते हैं पढ़ाई करो, लेकिन नहीं पढ़ते और लास्ट में रिजल्ट फेल होता है तब सुसाइड। क्यों करना पड़े भाई? भगवान ने इतनी अच्छी लाइफ दी है, जियो। ओके स्टूडेंट्स, तो लाइफ में कभी भी गिव अप करना नहीं है, और कोई करता है तो उसको करने भी नहीं देना है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आंसर। व्हेन यू आर लॉस्ट एंड कांट सी द लाइट, आई विल बी अ बीकॉन शाइनिंग सो ब्राइट। अगर आप कहीं पे गुम हो जाते हो, लॉस्ट हो जाते हो, so at that time what you have to do? You have to become a beacon. Now beacon means what students? Lighthouse, here a guide. Okay, so अगर आपका friends, if your friends are lost and he cannot see the light, उसकी लाइफ में अंधेरा ही अंधेरा छा गया है, at that time what you have to do? You have to become a beacon for your friends. You have to become a light. You have to become a guide for your friend. आपके फ्रेंड्स का आपको क्या बनना है? गाइड बनना है। बट हियर लॉस्ट मतलब गुम हो जाना नहीं,
लॉस्ट मतलब कन्फ्यूज्ड। अगर आपका फ्रेंड्स कन्फ्यूज़ हो जाता है कहीं पे भी, तो आप उसकी हेल्प करोगे, उसको गाइड करोगे, सॉल्यूशन ला के दोगे। सपोज़ क्लास में कोई भी फ्रेंड्स को अगर कुछ नहीं आता है और आप इंटेलिजेंट हो, आपको सब कुछ आता है, वो एक सम लेके आपके पास आता है कि मुझे ये सम सीखा ना, मुझे नहीं आ रहा है, तो आपको सिखाना है, गाइड करना है उसको। कोई भी चीज़ अगर कोई भी फ्रेंड्स आपको आके पूछता है तो आपको उसको क्या करना है, गाइड बनना है, ताकि वो अच्छे से क्या हो सके, शाइन हो सके। देखो नॉलेज जितना आप बांटोगे ना उतना बढ़ेगा। फिर ऐसा कहे कि आप बैठे रहोगे, नहीं मैं तो नहीं सिखाऊंगा, जा हट, ये चीज़ गलत है। तो आपको कोई भी फ्रेंड्स हो, अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको कैसा बुरा लगे, आपको कोई चीज़ नहीं आती और आप सपोज टीचर्स के पास जाते हो, सर मुझे ये नहीं आता, मैम मुझे नहीं आता, और टीचर मना कर दे तो जा नहीं सिखाऊंगी मैं, हट, तो आपको बुरा लगेगा ना। तो वैसे ही अगर आपका कोई भी फ्रेंड्स कन्फ्यूज्ड है, लॉस्ट हो गया है, तो आपको उसका क्या बनना है, लाइट बनना है और गाइड बनना है। ओके, बीकॉन बनना है, बीकॉन। अगर उसकी लाइफ में अंधेरा छा गया है तब, क्लियर। लाइट मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन देना है, और बीकॉन मतलब गाइडिंग लाइट। ओके, दिस इज माई oath that I pledge to the end. Now oath means what students? Promise, and pledge means भी promise। तो ये मेरा क्या है, प्रॉमिस है, जब तक, टू द एंड मतलब टिल द वेरी लास्ट, टिल डेथ, जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक मैं ये सारी चीज़ें करूँगा, ऐसा वो प्रॉमिस दे रहा है, वचन दे रहा है। वाई, क्यों, यू मे आस्क, आप लोग ऐसा कहोगे सर क्यों, जब तक ना मरे तब तक ऐसा प्रॉमिस क्यों दिया? बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, क्योंकि तू मेरा दोस्त है, तू मेरा फ्रेंड है। दैट इज़ वाई आई विल मेक अ प्रॉमिस टू माई फ्रेंड्स दैट टिल डेथ I will help you in any way. Okay students, so here we have completed this poem. I hope you understood it well. Now let's see the rhyming words of this poem. हर एक लाइन का लास्ट वर्ड आप देखोगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट 4 लाइन के लास्ट वर्ड कौन से हैं, अंडरलाइन करना है स्टूडेंट्स आपको। टेक्स्ट बुक लेके नहीं बैठे हो तो प्लीज़ टेक्स्ट बुक निकालो और टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर दो। सैड, स्कैर्ड, फर्स्ट और थर्ड लाइन में। फिर टीयर्स, फियर्स, सेकेंड और फोर्थ लाइन में। ओके, और नेक्स्ट आंसर में कौन सा है स्टूडेंट्स, होप, कोप। ओके, नेक्स्ट कौन सा है, लाइट, ब्राइट। नेक्स्ट एंड, फ्रेंड। ओके, अगेन रिपीट करता हूँ, सैड, स्कैर्ड, टीयर्स, फियर्स, hope, cope, light, bright and friend. Okay, so these are the rhyming words of this poem. So I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। Now let's discuss homophone and homonym. Okay, so what is the meaning of homophone? होमोफोन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? होमोफोन मीन्स one of 2 or more words pronounced alike but differ in meaning.
दिस मीन्स सच वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। तो ऐसे वर्ड्स जिसके साउंड क्या हो, सेम हो, साउंड क्या हो, सेम हो, स्पेलिंग और मीनिंग क्या हो, डिफरेंट हो। ध्यान से सुनना, साउंड क्या है, सेम, बट उसके स्पेलिंग्स और मीनिंग्स क्या है, डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल दिया है नीचे देखो, टू टू टू, TO2, TWO2 और TOO2, तीनों के साउंड सेम है बट उनके स्पेलिंग्स और मीनिंग्स क्या है, अलग अलग है। नेक्स्ट अवर, अवर, OUR, अवर, HOUR, अवर, ओके, सम, शम, वे, डाई, प्रिंसिपल, तो सब का प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है, बट उनके स्पेलिंग्स और मीनिंग्स क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, तो जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग और मीनिंग्स डिफरेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, होमोफोन्स। क्या कहेंगे, होमोफोन्स। ओके, ये आपकी वर्कबुक में भी है जो आपको खुद लिखना है समझ के। ये मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, फिर आपको वर्कबुक में लिखना है 24, 23, 24, 25 और 26 और 26 नंबर के पेज पे ही है। तो जब मैं दूंगा टास्क उस टाइम पे आपको करना है खुद। होमोनिम, ना होमोनिम मीन्स व्हाट। अब वहाँ पे जो था उससे यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है कि ऐसे वर्ड्स जिसके साउंड और स्पेलिंग सेम है। क्या सेम है स्टूडेंट्स, साउंड और स्पेलिंग, बट मीनिंग अलग होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, होमोनीम। देखो बहुत सारे नीचे एग्जाम्पल दिया है बट हम इजी एग्जाम्पल एक मैं आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वॉच। ना वॉच क्या है, साउंड स्पेलिंग सेम ही है वॉच का, एक ही वर्ड है, लेकिन मीनिंग्स दो निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वॉच मतलब देखना और एक वॉच मतलब जो घड़ी हम दीवार पे लगाते हैं ना, जो घड़ी टाइम दिखाती है वो। ओके, दूसरा एग्जाम्पल बैट, BAT, बैट, एक ही वर्ड है लेकिन उसके मीनिंग्स दो निकलते हैं। समझ में आ रहा है, बैट, BAT, बैट, बैट मतलब क्रिकेट में जो हम खेलते हैं वो, और बैट एक क्या है, बर्ड भी है, चमगादड़। ओके, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। सो होमोनिम मतलब क्या, एक ही वर्ड है लेकिन उसके मीनिंग क्या है, अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। और होमोफोन मतलब क्या, सेम साउंड है बट उसके स्पेलिंग और मीनिंग्स क्या है, अलग अलग है। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा होमोफोन, होमोनिम। उसकी एक्सरसाइज वर्कबुक में दी हुई है, आप जब करोगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी हैव completed this chapter. We have completed unit number 2, friendship. In this chapter we have studied 2 poems. One was The Arrow and the Song, second one is Friendship जो आज हमने पढ़ी, और एक चैप्टर भी पढ़ा ग्रैंडपास फ्रेंड पार्ट 1 पार्ट 2, एंड होमोनिम एंड होमोफोन्स के बारे में भी हमने पढ़ा। सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया तो 2-3 बार ये वीडियो सारे के सारे वीडियोस देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।